Is this happening with you? Now as exam dates are coming closer, आपके बॉडी में ना थ्रू आउट द डे एक हेवीनेस रहता है, अ टाइटनेस अराउंड योर चेस्ट. इज इट योर हार्ट बीट इज फास्टर दैन नॉर्मल, या फिर आप ओवरवेल्म फील करते हो, टायर्ड फील करते हो थ्रू आउट द डे. एट द सेम टाइम यू फील लाइक क्विटिंग, लाइक ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे कि ये अटेम्प्ट को स्किप कर देते हैं. This message is for you. I learned something very significant. Competitive exam is not just about number of revision or completing your syllabus. It's about how strong your willpower is during 30 days, 20 days before the examination. And it's about how you protect your mind with the negative thoughts, emotions and a negative pattern. So basically मेरे साथ भी यही होता था. I never realized it is a way my body starts behaving negatively. My mind, it always protect itself. मेरा mind ना मुझे पढ़ने ही नहीं देता था. It used to keep me in the comfort zone. Today I am going to share with you all 5 facts where you will put conscious effort कि आप ये सारी चीज के कारण intimate नहीं हो रहे हो and अपने पढ़ाई से grip lose नहीं कर रहे हो. These 15-20 days really matters for your success. So fact number 1 is stay with book even when every part of your body feels like running away from it. It happened with me. एग्जाम जैसे जैसे पास आता था पढ़ने का मन नहीं करता था. I feel comfortable with my books. अब आपको समझना होगा, these last few days ना every hour counts. Listen to me again. Last few days every hour count. There is something strange about competitive exam which I have experienced in my CA inter and I have heard from my friends clearing in their first attempt also. Sometimes now a strange magic happens. The questions which you solved in these last 15-20 days or last hour before the exam, that one question shows up in the paper. I had a conversation with my friend after the exam. I asked her कि कितना FTP में फुल कवर हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ. She said यार कोइंसिडेंटली RTP पढ़ के आए थे, 2 क्वेश्चन करके आए थे जिसमें एक क्वेश्चन आ गया, मेरा मैनेज हो जाएगा, पास हो जाएंगे. एंड आई वॉज लाइक शिट, काश ये लास्ट फ्यू आवर्स में RTP का क्वेश्चन हम भी देख लिए होते हैं. बट हियर्स व्हाट आई टोल्ड यू, लक फेवर्स दोज ना who stays on the table even on the last moment. Giving up is not the solution right now. Right now just have a strong faith and keep showing up, keep putting all the efforts. अभी आपको मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस ये सब कुछ फील नहीं करना है, वो टाइम गया. ये लास्ट 20 डेज आपको शो अप करना है. इवन ऑन डेज you feel you are not feeling good, you are tired or exhausted, still show up, keep practicing questions randomly, keep learning whenever you are free. वीडियो लेक्चर्स को एटलीस्ट वॉइस नोट से सुनना स्टार्ट करो. यू हैव अ लॉट ऑफ MCQ इन द एग्जाम. So as a mentor, I will recommend you don't leave before your miracle happens. ठीक है? Moving to fact number 2. Stop torturing yourself with that guilt. बहुत लोगों के साथ होता है जब they are sitting with their books solving questions, यार काश पहले पढ़ लिए होते. I didn't manage my schedule properly. I did not complete my class on a timely basis. वो गिल्ट ना आपका एनर्जी को स्टील कर लेता है and right now you need to fix this. Please accept this fact. जो टाइम जाना था वो चला गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट कॉल इट बैक. बट वॉट यू हैव करेंटली एंड इन फ्यूचर इन योर कंट्रोल, ट्राई टू फोकस एंड पुट एक्शन देयर. गिल्ट ना आपके एनर्जी को स्टील करता है एंड आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में रखता है, लो मूड में रखता है. अभी ये गिल्ट से बाहर निकलने का टाइम आ गया. एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुआ, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई एम रेडी to show for this last 15-20 days of my exam. Believe me, जो रैंक होल्डर्स है या फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लिए, इट इज नॉट कि वो लोग के लाइफ में ऐसा मोमेंट नहीं आया where they felt it's not possible now, let me give up. Also had topic they felt they are not perfect with, or they also had moments where they felt like there is too much to do, still they have lesser time and much to prepare for. बट ना बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज उनका विल पावर इतना स्ट्रांग रहता है ना कि वो खुद को पैरालाइज होने नहीं देते. विद दिस लो फ्रीक्वेंसी, लो मूड ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, तो खुद को अभी प्रोटेक्ट करो. जितना बार गिल्ट होता है, रिमाइंड योरसेल्फ जो चला गया चला गया. लेट मी पुट ऑल माई एनर्जी एंड पावर राइट नाउ इन द लास्ट फ्यू डेज विच इज अंडर माई कंट्रोल. ठीक है? सो रिमेंबर, आपका मिस्टेक्स आपका रिजल्ट को डिफाइन नहीं करता है, बट
The action which you take in the last few days definitely define your result. Fact 3. Your voice will continuously tell you, give up. What's the point? I'm not going to clear it anyway. Please, अभी ये moment ना बहुत ज़्यादा आएगा and you will feel you should go to the next attempt जहाँ पे आप बेटर रिवाइज करोगे और प्रिपेयर करोगे, रैंक के लिए पढ़ोगे. ये सारा वॉइस ना आपको एक क्विट करने का रीजन देगा पर्टिकुलर अटेम्प्ट को. आपको फील कराएगा अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू क्लियर दिस अटेम्प्ट एंड दिस इज वेयर यू विल गो रॉन्ग अनदर टाइम. राइट नाउ यू डोंट हैव टू लिसन टू योर वॉइस. जब हम प्रेशर में होते हैं ना, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, हमारा वॉइस सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है एंड इट स्पीक्स मैक्सिमम लाई इट कुड. तो अपने वॉइस को नहीं सुनना है. तो क्या करना है अभी लास्ट फ्यू डेज में? यू हैव टू हायर अ मेंटोर और यू हैव सम सीनियर फ्रेंड्स, योर फादर, समवन जिसका वॉइस ना आपके ब्रेन को समझ आएगा एंड वो आपको राइट डायरेक्शन देगा रादर देन आपको स्टॉप करेगा. इस टाइम पे अपने वॉइस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना. जितना बार लो मोमेंट आता है, गिव अप वाला इमोशन आता है, जस्ट रीच आउट टू दैट वन पर्सन जो ये जर्नी को ऑलरेडी पास कर चुके हैं. बिलीव मी, अगेन आई एम सेइंग यू, चाहे वो रैंक होल्डर है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस है, सबके अंदर ये सारा लेयर्स ऑफ इमोशन अराइज होता है अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस. बट हाउ वन डील विथ इट is the game changing point in any of the competitive exam. ठीक है? Fourth one, accept the pain and don't run away from it. Next 1 month ना आपके लिए emotionally, mentally, physically challenging होगा. You have to put more efforts, discomfort में जाना होगा एंड यहाँ पे क्या होगा ना, आपका बॉडी एक होगा, स्पेशली बैक पेन, बहुत बार आपके फोरहेड में भी पेन होगा, मेंटल एग्जॉशन फील होगा. देयर विल बी काइंड ऑफ पेन थ्रू आउट, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. एक्सेप्ट दैट पेन. उससे रन नहीं करना है बिकॉज आप ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वेयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड प्रिपेयरिंग द सेम सिलेबस. बट आपको भी पता है पास परसेंटेज कम रहता है, राइट? एंड विद एवरी सक्सेस कम्स सम पेन. तो ये पेन को एम्ब्रेस करो रादर दैन रनिंग अवे फ्रॉम इट. I did this mistake. I usually had health issues like stomach ache, head pain. मैं ना उसे एक रीजन बना लेती थी पढ़ाई नहीं करने के लिए. बट अंडरस्टैंड, ये कॉमन प्रॉब्लम है. इवन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर जो करते हैं ना, उनका भी ऐसा स्टोरी रहता है कि व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग लास्ट फ्यू डेज में कुछ हेल्थ इश्यू आ गया. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ स्ट्रेस, लेट नाइट स्टडीज के कारण आपके बॉडी को उस चीज का हैबिट नहीं है. तो ये आएगा, इट्स नेचुरल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, एक्सेप्ट दिस पेन and always remember, discomfort is a sign you are preparing. Comfort is a sign you are not preparing, you are not showing up. So instead of considering your pain as a punishment, consider it, your pain is a preparation which you are doing to compete that lack of students and get among those 10 to 15 pass percentage your name. ये आपका mind and body है which is getting ready for the battle. पेन टेम्पररी है, एक्सेप्ट करो. दिस टेम्पररी पेन इज बिल्डिंग अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन यू. ठीक है? फैक्ट जो 90% इग्नोर करते हैं, क्लीन योर एनर्जी एवरी सिंगल डे. मोस्ट ऑफ अस ऑफन टेंड टू इग्नोर दिस एस्पेक्ट. समझो कि हमारा बॉडी को ना एक रीसेट चाहिए क्योंकि अभी इस पीरियड में आप अपना सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, राइट? या आप अपने नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो. टू द टाइट शेड्यूल यू हैव, ऑल द एनर्जी यू आर पुटिंग टूवर्ड्स द प्रिपरेशन. आपको अपने बॉडी को रीसेट कराना होगा इन एवरी 2 hours. हाउ यू कैन डू विद सिंपल 3 to 5 minutes एक्सरसाइज which I have shared in my previous videos also. Chant ओम, YouTube में प्ले कर लो एंड 2 minutes के लिए ओम चैंटिंग से अपने माइंड एंड बॉडी को अलाइन करो वापस से. सेंटर योरसेल्फ. सेकंड, एवरी इवनिंग ना, इवनिंग में जब सनसेट होता है तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारा बॉडी ड्रेन फील करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ सनराइज टू सनसेट. तो इस टाइम पे ना यू बर्न द इंसेंस स्टिक इन द टेबल. जो अरोमा है ना इंसेंस का, जो एशेस है, वो आपके सराउंडिंग को एक्टिवेट कर देगा विथ राइट एनर्जी. यू विल फील लाइटर रादर देन फीलिंग हैवियर ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम. पावर नैप आफ्टर एवरी 3 hours.
5 to 10 मिनट्स पावर नैप भी आपके ब्रेन को रिचार्ज करेगा एंड इट विल हेल्प यू सिट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट विथ मोर एनर्जी। ठीक है, तो अपना एनर्जी पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर में रहोगे एंड दीज इमोशन नीड्स अ बैलेंस। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ये सारे इमोशंस को। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, समथिंग, व्हेन अ डेडलाइन कम्स, आपका बॉडी एंड ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है, तो उसे डिफरेंट एनर्जी रीसेट चाहिए होता है। ठीक है, सो रिमेंबर, क्लटर्ड माइंड कभी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। काम माइंड है ना, ज्यादा पावरफुल माइंड होता है। तो ट्राई टू ब्रिंग योर एनर्जी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ काम माइंड इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। So I close this video. Remember, now every hour matters, every attempt matters. Don't decide to quit your attempt because आप ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए हो। आपका प्रिपरेशन जैसा भी है, एटलीस्ट 20 डेज MCQ 30 मार्क्स के लिए पढ़ो, अपने आप को इवेल्युएट करना लेटली। डोंट रन अवे फ्रॉम दिस 20 डेज, स्टिक टू इट। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स who is a entrepreneur but वो CA का एग्जाम दे रहा था एंड वो लास्ट 1 मंथ पढ़ के देता था। He cleared faster than me and मेरे को बहुत कंप्लेंट्स रहता था कि आई एम प्रिपेयरिंग लास्ट 3 मंथ से, मेरा नहीं हुआ, एंड यही आशीष का क्लियर हो गया जस्ट बिकॉज वो ना लास्ट 1 मंथ को अपना पावर मंथ बना लेता था। लास्ट 15-20 डेज में ही यूज्ड टू गिव हिज एवरीथिंग एंड दैट मेड हिम डिफरेंट एंड दैट गिव हिम रिजल्ट। तो ट्रस्ट मी, नंबर ऑफ रिविजन, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ पास्ट स्टडीज, ये सब अभी मत लेके आओ, ये नहीं मैटर करेगा। राइट नाउ मेक योर अटेम्प्ट काउंट। यू नेवर नो व्हेन द मिरेकल हैपेंस इन योर favor. Till then, congratulations to all of you for the upcoming result. My best wishes and sending you energy of love, light and success. Stay connected forever.